स्टूडेंट्स, तो आज का सेकंड सेशन है। जैसे लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो हमने देखा था। आज के सेशन में हम फर्स्ट लाइफ प्रोसेस देख रहे हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। मैं बायोलॉजी बाबा आपके साथ आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो सीरीज जो स्पेशली शूट हो रही है या जो ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे, उसके पीछे का एक रीज़न है कि अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो ये आपको हेल्प करेगा टू स्कोर द मैक्सिमम एंड टू रिवाइज इट फटाफट, राइट, यानी जल्दी जल्दी। और अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, मस्ती की है, शरारत की है और ऐसे ही साल निकाल दिया है, फिर भी ये सेशंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे लास्ट मंथ रिवीजन के फॉर्म में, या टू प्रिपेयर द कंसेप्ट एट द वेरी फास्ट स्पीड, दैट इज 5G के स्पीड पे। और इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ये चैप्टर, ये टॉपिक ये कहना चाहता है, और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली लर्न कर सकोगे। तो शुरू करते हैं। आज का ये जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा कि न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है और न्यूट्रिशन के सब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन क्या होते हैं। सो आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स respectively. Autotrophs are the living organism which prepares their own food with the help of a biochemical reactions known as photosynthesis, right? तो उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आगे आप जैसे 11th में आएंगे तो इसके रिलेटेड एक चैप्टर है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले या तो ऑटोट्रॉप्स को कहा गया है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करने वाले या तो हेटरोट्रॉप्स को कहा गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, सो from the nutrition point of view, the living organisms can be classified as autotrophs and heterotrophs. How do organisms obtain their nutrition and nutrition in a human being? ये चार मेन टॉपिक रहेंगे आज के सेशन के टू एक्सप्लेन द लाइफ प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, the process by which living organism produce their own food। ठीक है, अब living organism produce their own food कैसे? So living organism are performing a special biochemical reaction. Living organisms are performing a special biochemical reaction known as photosynthesis। photosynthesis के रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है क्लास 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो photosynthesis is a kind of biochemical reaction in which the atmospheric CO2, sunlight and water is involved for the production of a reserve food material in plants known as starch. That biochemical reaction is known as photosynthesis, and from the photosynthesis the plants are preparing their own food, and that food prepared by the plant are also consumed by the primary consumer known as herbivorous animals. So the process by which organisms produce their own food types are photoautotrophs। यहाँ पे हर एक टाइप को हम थोड़ा समझेंगे, उसका मीनिंग डिसेक्ट करेंगे, राइट। सो photoautotrophs, trophs means living organism, they are living in a particular tropical regions. Auto means automatically by themselves, and photo with the help of light. So the living organism which prepares their own food with the help of light,
they are known as photoautotrophs. Certain living organisms also prepare their own food, but in that case, the chemical substance that is secreted in their body, or some chemicals or some class of living organisms are absorbing certain raw material from their surrounding environment, they are known as chemoautotrophs. Means they are using the chemical energy. See, here it is mentioned that in photoautotrophs, the living organism uses the light as a primary source, while in case of chemoautotrophs, they are using chemical energy. Here the example is written plant, and here the example is written as सर्टन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के बारे में बात करें, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है आइदर आपके रेगुलर एनसीईआरटी में या तो फिर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लिस्ट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ द chemoautotrophs or the certain bacteria that are producing their own food. So with by that chemoautotrophs के एग्जाम्पल अगर पूछे जाते हैं तो उनके नाम आएंगे ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, नॉस्टॉक. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उनके बॉडी में सर्टेन पिगमेंट्स सिंथेसाइज होते हैं, रिएक्ट होते हैं, और वो रिएक्ट करके अपना खाना खुद बनाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज chemoautotrophs. Means they are preparing their own food with the help of chemicals. What is the importance of autotrophic nutrition? They are fundamental to energy flow in ecosystem. अब इसके बारे में अगर एक सेंटेंस में समझे कि अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड है और उन पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड है. आई होप आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू आर वेरी मच अवेयर विद द फंडा और विद द कंसेप्ट ऑफ द फूड चेन एंड फूड वे. ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और वही एनर्जी फ्लो, वही फूड चेन मेंटेन करने के लिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है. सी अनदर स्लाइड इज फॉर मैकेनिज्म ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी ऑटोट्रॉप्स कैसे वो अपना खाना खुद बनाते हैं. सो photoautotrophs are preparing their own food with the help of photosynthesis. photosynthesis में कीवर्ड्स उसके डेफिनेशन किए होंगे. एटमॉस्फेरिक CO2 प्लस वाटर in presence of sunlight produces the food and it releases oxygen and water, right? तो यहाँ पे देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस की हुई है, तैयार बैलेंस की इक्वेशन है. ये रिवीजन एक बार, ये सेशन वीडियो एक बार दो बार देखोगे तो धीरे धीरे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो द थिंग इज दैट 6CO2, that is atmospheric carbon dioxide, which is exhaled by the animals, by us, and the water are absorbed or supplied to the plants in presence of the light energy, that is sunlight energy. After the completion of this process, the plants produce a reserve food material, that is starch. What is starch? Starch is the one and another derived from of the glucose or carbohydrate. 11th क्लास में 9 चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें ये डिटेल में पढ़ाते हैं हम कि C6H12O6, that is a form of glucose, is produced along with the release of that oxygen, and it gives water plus light energy. That's the thing. The process, what is the process? The conversion of light energy into chemical energy in glucose, that is example green plants and algae. What is the significance? The conversion of
लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है एटमॉस्फेयर में वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी यानी इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स. हेटेरोट्रॉप्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द ऑटोट्रॉप्स. तो the process by which organism obtain food from other organism, they are herbivorous, carnivorous, omnivorous and decomposers. अब ये चार जो हैं एक दूसरे के साथ one and another form, either they are interconnected directly or indirectly. Herbivores are dependent on the plant directly, they are consuming the plants, example deer. And carnivores are those animals which depends on the other animals, example lions. Omnivorous consumes both plants and animals, and example human. And decomposers that are dependent on the breakdown of the dead organic matter, example फंजाई और बैक्टीरिया. कभी कभी हम देखते हैं कोई डेड बॉडी होती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है, बास मारने लगती है, तो वो क्या है, तो जब ये फंजाई और बैक्टीरिया उस पे एक्ट करना, रिएक्ट करना शुरू होते हैं तो उसकी बॉडी में से नाइट्रोजन गैस या तो फिर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है. तो व्हाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, और हम कहते हैं कि वो डेड बॉडी सड़ने लगी है, राइट. सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हमने पहले स्लाइड में देखा व्हाट इज न्यूट्रिशन, उसका यानी इसके टाइप ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. बाद में ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोट्रॉपिक. मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ये रिलेटेड है, ये फ्रेम कर रहा है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा. न्यूट्रिशन कंस्टिट्यूट ऑफ द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ये 5 प्रोसेस का बना होता है न्यूट्रिशन. आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए फर्स्ट सेशन का. तो डाइजेशन प्रोसेस दैट इज इंजेशन. इंजेशन में डाइजेशन होता है, दैट इज मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. इसका मतलब क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और उसका जब डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम बकल कैविटी टू द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. एक पूरा चैप्टर है जो आपके पिछले सिलेबस में था एनसीईआरटी में, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो आपके निकल गया है. लेकिन जब हम पढ़ाते हैं क्लास 11th में बायोलॉजी में, तब वो चैप्टर के बारे में थोड़ा ओवरव्यू और फंडा क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इसेंशियल चैप्टर फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप डॉक्टर बनते हो और कभी पेशेंट आता है, वो बोलता है कि हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो नो डाउट आपको मेडिकल में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन एट द लेवल ऑफ हायर सेकेंडरी इसके बारे में डाइजेशन इन एनिमल्स और डाइजेशन इन ह्यूमंस आपको उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. So digestion is a biochemical complex process of conversion of large complex food into simpler absorbable form. So digestion includes mechanical and chemical processes that use absorption and egestion. Egestion means the removal of the excretory substance. Removal of the excretory substance from the body. Examples, animals and humans that obtain energy through the food consumption. How do organism obtain their nutrition? देखो, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस तरह का
उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है, हैबिट और हैबिटेट होता है, उस तरह से उसको लाइफ में एडेप्शन और एडजस्टमेंट के साथ उसका न्यूट्रिशन मोड है वो चेंज करना पड़ता है इफ दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू सर्वाइव। वहां पे अप्लाई होती है इवोल्यूशन की थ्योरी जो चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 में। लेकिन अभी तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द फीडिंग पैटर्न ऑफ द न्यूट्रिशन। द फीडिंग स्ट्रेटजीज आर आइदर दे आर ऑटोट्रॉप्स मींस सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस means they are synthesizing their own food with the help of chemicals that are present in their body or that are secreted within their body with the help of metabolic reactions. Second, heterotrophs. Heterotrophs are such living organisms that rely on consuming other organism or organic matters. जो living organism role play करते हैं as a primary कंज्यूमर्स का, उनको हम कहेंगे हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे आर डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉप्स एडेप्शन स्पेशल स्ट्रक्चर्स एग्जांपल रूट फॉर प्लांट्स एंड टीथ फॉर एनिमल्स। अब टीथ फॉर एनिमल्स की बात है, अगर हम शाकाहारी खाना खाते हैं तो हमारे टीथ छोटे होंगे, नॉर्मल शेप होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कार्निवरस है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पकड़ के फाड़ के खाते हैं तो उनके दांत नुकीले होंगे, बड़े होंगे और बाहर की तरफ टिल्टेड होंगे ताकि वो इजीली कोई अपने प्रे को कैप्चर कर सके। ओके, सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। क्या खाते हैं वो लोग, ह्यूमन बीइंग क्या खाते हैं? हम लोग तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, पिज्जा है, बर्गर है। आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, नहीं तो बहुत सारे डास खुल सकते हैं। So nutrition in human beings, importance of the balanced diet includes macronutrients and micronutrients. Macronutrients और micronutrients को अगर हम easily समझना चाहें तो एक और पॉइंट ऐसा भी है, देखिए कि the nutrients which are required in the living body in the range of 1 milligram to 10 milligram, कुछ हायर क्लास की डेफिनेशन है, सिर्फ देख लीजिए, उससे हम मैक्रो कहेंगे। द लिविंग द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द रेंज ऑफ 0.1 मिलीग्राम टू 1 मिलीग्राम, ये पता नहीं क्यों 0.1 मिलीग्राम टू 1 मिलीग्राम, दे आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल कोट किए गए हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द worn out tissues and to means for the certain proteins are important for performing the essential metabolic reaction. Fats, energy stores and insulation। हम लोग जो खाना खाते हैं वो तुरंत ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन सेविंग भी ज़रूरी होता है। कभी एक दिन खाना नहीं खाया, कभी फास्ट रखा, तो उस केस में जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, वो एनर्जी उस दिन हमें काम लगती है। और इंसुलेशन, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इंसुलेशन भी ज़रूरी होता है, इसके लिए वो फैट्स के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ओके, next topic, micronutrients and water. Vitamins essential for various bodily functions, that is vitamin C for immunity। और भी कई सारे vitamins का importance है, but vitamin C is the major one which gives us a major immunity to your body. So other minerals are also important for the bone health and metabolic processes, example calcium and iron, and water is vital for the hydration and metabolic प्रोसेसेस। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा गया है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन को, रिएक्टेंट को डिसॉल्व करने के लिए वाटर एज अ मीडियम यूज होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम एक सेंटेंस ऐड कर देंगे। अगर आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में या तो एमसीक्यू में, कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू में पूछा जाए विच इज द सब्सटेंस considered as universal solvent, तो आंसर आएगा
water is known as universal solvent. ठीक है, सो दिस इज, फिर से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरव्यू. की ऑर्गन्स आर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. स्टार्ट करते हैं. माउथ, स्टमक, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन यानी वो पार्ट है जहां पे डाइजेशन के बाद जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट जिसके लिए हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, लिपिड के लिए, वो सारे के सारे वहां पे मिलते हैं. और अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो रिमूव एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होता है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी कहा जाता है. सो द माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द organs which are included in the digestive system of the animal. और उसका फंक्शन होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोसेस, इंजेशन, इंटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इजेशन. इंजेशन में इन्वॉल्व कौन है? माउथ. डाइजेशन में स्टमक, पार्शियल डाइजेशन स्टमक, और लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में रिमेनिंग डाइजेशन होता है. एब्जॉर्प्शन बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, इजेशन बाय लार्ज इंटेस्टाइन, and the waste is removed or transported to the excretory organ of the human body. Kidney wala system. Conclusion. The conclusion is of the nutrition topic is that autotrophic and heterotrophic nutrition are essential for life. Understanding this processes help us to appreciate the importance of the balanced diet in humans. हम जो भी खाना खाते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें सारे के सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए. यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, लिपिड होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए. हमारे डाइट में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो या कम क्वांटिटी में हो तो एट लास्ट वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा और मे लीड टू द डिसऑर्डर और डिजीज कंडीशन. तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द टुडेज सेशन, बैलेंस डाइट होना चाहिए. एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कि आपका सेशन जो 10th स्टैंडर्ड के चल रहे हैं वो इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्ज़ाम के लिए ओवरव्यू देंगे, रिवीजन करवाएंगे, फंडा ब्रशअप करवाएंगे. तो एक भी सेशन मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ छूटना नहीं चाहिए. और छूटे ना इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चैनल को नोटिफाई कर, बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आज एक नया लेक्चर अपलोड हुआ है. हमारे पास दिन कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है, तो एक भी लेक्चर छूटना नहीं चाहिए. हमें अच्छे से अच्छे स्कोर लाने हैं एग्ज़ाम में. सो प्लीज़ जुड़े रहिए. ये बायोलॉजी बाबा आदर्श बायोलॉजी पाठशाला में आपके साथ हमेशा आपके बन के रहेंगे. हैव अ नाइस टाइम. बेस्ट ऑफ लक.